students, today in this video we will discuss something about the De Morgan's theorem. De Morgan's theorem of sets, उसका वेरिफिकेशन और उसका प्रूफ. One of the most important thing of this chapter, sets. Both the things, verification and proof, both are important. But actually to verify any theorem or verify any formula, that is very simple thing. We can take the examples in case of the verification. But when we are going to prove any theorem or prove any formula, then the particular example we can not take. So verification और proof आप देखेंगे इस De Morgan's theorem का. So first the verification, but before that see what is the De Morgan's theorem. So De Morgan's theorem on the sets, the first theorem is A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट. सो ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है. सो जब यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट होगा और जब ब्रैकेट रिमूव होगा, देन द सेम यूनियन विल बी रिड्यूस्ड इन इंटरसेक्शन सेपरेटली, देन दैट विल बी A complement intersection B complement. And the second one is the same thing, but the sign will be changed. In place of the union, that will be intersection. So A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. Means intersection का अगर complement है and when the bracket means the whole complement will be removed, then same intersection will be reduced in the form of the union. That is very important thing about the set, and that is De Morgan's theorem. So we will see द वेरिफिकेशन. पहले वेरिफिकेशन देखिए. वेरिफिकेशन से थ्योरम आपको क्लियर हो जाएगा एक्चुअली थ्योरम है क्या. आफ्टर दैट द सबसे स्पेशल थिंग, द मोस्ट स्पेशल थिंग, दैट इज द प्रूफ विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द सेट्स. सो सेट वेरिफिकेशन देखिए. वेरिफिकेशन के लिए अगर आपको किसी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो यूनिवर्सल सेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से ही माइनस करके आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं. So let U is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ये एक बड़ा सा सेट ले लिया ऐसे, दैट इज यूनिवर्सल सेट. अब जो सेट A और B होगा उसी का सबसेट होगा. सो A is equal to 1, 2, 3, 4. This is set A, and let set B is equal to 7 and 8. ये हमने पहले सपोज कर लिया, आपको सपोज ही करना है, वेरीफाई करना है. देन फॉर द LHS, दैट इज A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व द LHS. और अगर आपको A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, देन बिफोर दैट यू फाइंड आउट A यूनियन B. A यूनियन B इज इक्वल टू व्हाट. सो A यूनियन B इक्वल टू, वी हैव टू ज्वाइन the elements of A and B, that is 1, 2, 3, 4, 7 and 8. This is A union B. Then अब उसका complement, then A union B का complement is equal to, किसी का complement find करते हैं तो the same set will be subtracted from universal set U. अब universal set U से this 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 7, 8 माइनस करिए, देन यू विल गेट 5 and 6. 5 and 6. देन दिस इज द वैल्यू ऑफ LHS. इन द फर्स्ट वन दिस इज द वैल्यू ऑफ LHS. RHS में पहले A कॉम्प्लीमेंट और फिर B कॉम्प्लीमेंट और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन. सो A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट. कॉम्प्लीमेंट मीन्स सब्ट्रैक्ट द एलिमेंट ऑफ सेट A फ्रॉम the universal set. So 1, 2, 3, 4 will be subtracted, then remaining 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. This is A complement. Then you find out B complement is equal to B complement. B has 7, 8. Then 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This will be here. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7, 8 will be removed. Now A complement intersection B complement is equal to what?
ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स? 5 and 6, 5 and 6, and this is the value of RHS. Now you see the value of RHS and LHS are equal, so we can write, let this is equation number 1 and this is equation number 2. So from 1 and 2 we can write, so from 1 and 2 the theorem is verified that A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement, and this theorem is verified. This theorem is verified. But if any question it is written that verify this theorem, तो वो तो simple है that you take the examples and solve. But if that is written that with the help of some properties, with the help of the properties of the set, prove the De Morgan's theorem, तो जब क्वेश्चन में प्रूव लिखा होगा तो आप ये एग्जाम्पल्स आप नहीं ले सकते. देन वी हैव टू प्रूव एनी अदर मेथड यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रूव भी दो मेथड से है, एक वेन डायग्राम मेथड से भी है और एक प्रॉपर्टीज के मेथड से है. बट स्पेशली इट इज़ रिटन दैन यूजिंग द प्रॉपर्टीज. तो अगर प्रॉपर्टीज यूज करना है तो आप वेन डायग्राम भी नहीं कर सकते. वेन डायग्राम आप तभी यूज करेंगे जब स्पेशली उसमें लिखा हो यूजिंग द वेन डायग्राम. अगर प्रॉपर्टी यूज करके है तो आपको प्रॉपर्टी यूज करके ही करना है. नाउ सी द प्रूफ ऑफ दिस फर्स्ट वन यूजिंग प्रॉपर्टीज. प्रूफ ऑफ द फर्स्ट थ्योरम यूजिंग प्रॉपर्टीज. और आप पहले देखें कैसे उसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट राइट द फर्स्ट वंस मोर. आई एम गोइंग टू राइट द फर्स्ट वन. सी द फर्स्ट वन वॉज ए यूनियन बी. A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. And what to do here? We have to prove using the properties. So proof of this theorem using properties of sets. Very important thing, using properties of sets. So using properties of set, the proof. तो now see, पहले समझिए इसको. यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, कुछ हिंट यहाँ पे हम राइट साइड में कुछ हिंट दे रहे हैं, पहले इसको समझिए आप. जब हम यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ रहे थे, देन यू आर नोइंग दैट इन केस ऑफ द यूनियन, जब कहीं यूनियन लिखा होता है तो उसका मतलब होता है आर. यूनियन का मीन्स आर. जब यूनियन का डेफिनेशन आप देखिए तो उसमें लिखा है आर इन प्लेस ऑफ. और जब कभी इंटरसेक्शन होता है तो उसके प्लेस पे लिखा जाता है एंड. यूनियन मीन्स आर और इंटरसेक्शन मीन्स एंड. ये बहुत बेसिक है. जब कभी आप कोई क्वेश्चन प्रूफ करेंगे सेट्स का, सेट्स के और भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब प्रूफ भी करेंगे हम. बट बिफोर दैट यू सी द डे मॉर्गन्स थ्योरम. और यूनियन का मतलब होता है आर और इंटरसेक्शन का मतलब एंड. लेकिन बट जब आपके पास डज नॉट बिलोंग्स टू साइन हो तब आप देखिए क्या है. जब आपके पास डज इन केस ऑफ डज नॉट बिलोंग्स टू साइन, बट इन केस ऑफ डज नॉट बिलोंग्स टू साइन, जब यूनियन के प्लेस पे आप एंड लिखेंगे और इंटरसेक्शन के प्लेस पे आप लिखेंगे आर, वही चीज़ चेंज हो जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी भी आप कोई प्रूव करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि डे मॉर्गन्स थ्योरम ही, और भी कोई क्वेश्चन प्रूव कर रहे हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनियन के केस में वो होता है आर और इंटरसेक्शन के केस में होता है एंड. ये तो बेसिक है. लेकिन इन केस ऑफ डज नॉट बिलोंग्स टू साइन, ये आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जब प्रूफ में डज नॉट बिलोंग्स टू साइन हो तो यूनियन के प्लेस पे एंड लिखेंगे और इंटरसेक्शन के प्लेस पे आर लिखेंगे. द सेम थिंग विल बी चेंज्ड. बिल्कुल वही, जहाँ पे आर था वहाँ पे एंड हो जाएगा और जहाँ पे एंड था वहाँ पे आर हो जाएगा. अगर क्वेश्चन में या आपके प्रूफ में कहीं भी डज नॉट बिलोंग टू साइन आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और अभी और भी क्लियर हो जाएगा जब हम इसको यूज़ करेंगे.
अब आप प्रूव करने जा रहे हैं तो कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर सेट आप नहीं ले सकते, जो भी प्रूफ होगा वो एक्स वाई में होगा। सो लेट अंडरस्टैंड, लेट एक्स बिलोंग्स टू और जो भी LHS में लिखा होगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। एक्स बिलोंग्स टू जो LHS एक वेरिएबल है, एक्स का मतलब कोई भी एलिमेंट हो, तो कोई भी एलिमेंट हो गया एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन आपको मालूम है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू से सब्ट्रैक्ट करने के बाद। नाउ सी हियर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये क्यों हमने लिखा, एक्स तो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है एक्स, और ये है जो भी आपके क्वेश्चन में LHS में लिखा होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब आप देखिए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन, एक बार हम यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन। ये आपका है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 5 6, और ये है ए यूनियन बी, ये आपका ए यूनियन बी है। तो जो चीज़ कॉम्प्लीमेंट में होता है वो उस सेट में नहीं होता है। जैसे आप ए को देखिए, ये ए है, ए कॉम्प्लीमेंट है 5 6 7 8 और सेट ए है 1 2 3 4। तो जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में है वो सेट ए में नहीं है, और जो सेट ए में है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो या तो वो कॉम्प्लीमेंट में होगा और या तो वो सेट ए में होगा, दोनों जगह कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता है। तो जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में है वो उस सेट में नहीं होगा, और जो एलिमेंट उस सेट में है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेट्स। नाउ सी, अब ये है एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक्स उसके कॉम्प्लीमेंट में है। तो अगर एक्स उसके कॉम्प्लीमेंट में है तो फिर वो उस सेट में नहीं होगा। देन यू कैन राइट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। यू अंडरस्टैंड थिंग बहुत ही ठीक से, एंड वेरी केयरफुली यू अंडरस्टैंड द स्टेप्स, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट में था तो उस सेट में नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब ये है, जब डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाए तो यूनियन के प्लेस पे आके लिखते हैं एंड। अब यहाँ पे आया डज नॉट बिलोंग्स टू, तो आप क्या लिखेंगे यूनियन के प्लेस पे एंड। तो दिस कैन बी चेंज, ये इम्प्लाइज दैट का साइन आप लगाते रहिए, इम्प्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और वैसे यूनियन के प्लेस पे आर लिखा जाता है, लेकिन आपके पास डज नॉट बिलोंग्स टू है तो वो उल्टा होगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। नाउ implies that x does not belongs to a, मीन्स x कोई एलिमेंट है जो a में नहीं है, तो अगर a में नहीं होगा तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। देन दैट विल बी x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। अगर वो a में नहीं है तो a कॉम्प्लीमेंट में होगा, और कॉम्प्लीमेंट में ही नहीं है तो वो a में होगा, वो हमने डिस्क्राइब किया। एंड x, ये यहाँ डज नॉट बिलोंग टू रहेगा, एंड एक्स ये डज नॉट ब्रैकेट ओपन किया, इस केस में केवल ब्रैकेट ओपन हुआ है बस, एंड डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर वो बी में नहीं है तो दैट विल बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो अब इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे, देन एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, और एंड के केस में अब एंड के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब डज नॉट बिलोंग्स टू नहीं है तो एंड के केस में क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन, ये आएगा, क्योंकि डज नॉट बिलोंग्स टू वो साइन अब नहीं है आपके पास, बिलोंग्स टू साइन है, तो एंड के प्लेस पे दिस वन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये है इक्वेशन नंबर 1। आपने क्या किया, LHS को लिया x बिलोंग्स टू द LHS, और उसको प्रॉपर्टी अप्लाई किया, तो वो आपको लास्ट में क्या मिल गया, जो वैल्यू RHS में थी वो वैल्यू मिल गई। लेकिन यहाँ सेट के केस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन केवल ऐसा नहीं है कि आप LHS सॉल्व करिए और RHS मिल जाए, आपको RHS सॉल्व करके LHS भी लाना रहता है। नाउ सी एंड लेट नाउ द रिवर्स x बिलोंग्स टू, अब लेफ्ट साइड नहीं बल्कि राइट साइड, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन
ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। नाउ सी अब क्या है, अब इसको जैसे यहाँ से LHS अब एक एक स्टेप करते आप RHS में पहुँचे। अब RHS सॉल्व कर रहे हैं तो एक एक स्टेप करके LHS पहुँचिए। हम आपको एक शॉर्टकट बता रहे हैं। अब आपको ये सब आपको कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पे आपने ये लिखा, अब बिना कुछ सोचे समझे आप ये लाइन लिख दीजिए, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो आपको इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। तो जब हमको वही चीज़ मिलना ही है और हमने कोई मिस्टेक इसमें नहीं किया है, देन वी कैन कॉपी द सेम लाइन विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। अब आपने ये लिखा, इसके बाद आप ये लिख लीजिए। सो x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसको ये कहाँ से आया था, इस लाइन से आया था, तो इसके प्लेस पे ये लिख लिया। अब इसके बाद ये लाइन लिख लीजिए। अब वो है भी, अगर आप सोच के भी लिखेंगे तब भी ये a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो a कॉम्प्लीमेंट में है तो किस में नहीं होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये आ गया, ये लाइन मिल गई। इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। अगर आप सोच के भी लिखेंगे तब भी एंड के प्लेस पे क्या होगा, वैसे एंड के प्लेस पे इंटरसेक्शन रहता है, लेकिन आपके पास डज नॉट बिलोंग्स टू है तो यूनियन। आपको सोचिए नहीं, एक एक स्टेप करते करते वही लिखिए। अब यहाँ पे आ गया इस लाइन पे, अब आप इस लाइन पे पहुँचिए। सो इम्प्लाइज दैट का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब में आप लगाते रहिए ऐसे ही। इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट, and that is second equation. So from 1 and 2 आपने फर्स्ट सॉल्व किया, LHS सॉल्व किया तो RHS मिल गया, RHS किए तो वो LHS मिल गया। देन यू कैन राइट A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, एंड दिस इज प्रूफ ऑफ द फर्स्ट De Morgan's थ्योरम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जब सेकेंड करेंगे तो कुछ और भी चीज़ क्लियर हो जाएगा। सो सी द सेकेंड वन, सी द सेकेंड वन, दैट इज A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। इसका वेरिफिकेशन और फिर इसका प्रूफ विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट्स। सो A equal to U equal to 1 2 3 4 5, the same set I have taken in the previous one, universal set A and set B. Now solve the LHS. To find out the value of LHS, पहले हम फाइंड करेंगे A intersection B. So see here, A intersection B is what? A intersection B is equal to, A intersection B is equal to, what is that? Nothing is here, no element is common. तो वो इंटेंशनली हमने ऐसे लिया था बिकॉज वी हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट टू फाइंड आउट द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सो A इंटरसेक्शन B, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, देन दैट विल बी 5। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, देन व्हाट विल बी A इंटरसेक्शन B नॉट मीन्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट से माइनस करिए। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, देन व्हाट विल बी subtracted from the universal set, 5 will be subtracted, 5 मतलब 0। अब इसमें से अगर आप कोई भी एलिमेंट सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, then what will be remaining, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ये पूरा ऐसे बच जाएगा। दिस इज वैल्यू ऑफ LHS and let this is equation number 1. Now see about the RHS. सो RHS में क्या है, आप फाइंड करिए A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट, A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4, आप निकालिए उसमें तो मिलेगा आपको 5 5 6 7 और 8, ये A कॉम्प्लीमेंट आ गया। देन यू फाइंड आउट द B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 7 और 8, 7 और 8 चाहिए उसमें, देन 1 2 3 4 5 and
6. This is B complement. Then A complement or union B complement. A complement union B complement is equal to what? इन दोनों को ज्वाइन करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Now see, this is the value of RHS and let this is second equation. This is second one. Now see, from 1 and 2, from 1 and 2, A intersection B whole knot means complement is equal to A complement and union B complement. This is verified. तो ये वेरीफाई तो ये हो गया. वेरीफाई इज वेरी सिंपल थिंग, बट नाउ वी हैव टू सी द प्रूफ ऑफ दिस वन यूजिंग सम प्रॉपर्टीज. सी द प्रूफ ऑफ द सेकेंड वन, एंड द सेकेंड थ्योरम इज A इंटरसेक्शन B होल नॉट मीन्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. इसका वेरिफिकेशन आपने पढ़ लिया. नाउ द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट्स. Using properties of sets. Proof using properties of the sets. और फर्स्ट आपने पढ़ लिया है. Then these rules once more that will be used. Union, generally in place of the union we write R और intersection के प्लेस पे and. लेकिन जब आपके पास does not belongs to sign हो, in case of the does not belong to sign, the same will be interchange means union के प्लेस पे वो and हो जाएगा और intersection के प्लेस पे R. if these things is clear और फर्स्ट का आपने प्रूफ पढ़ लिया है, then सेकेंड के प्रूफ में आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी. now see, let x belongs to जो कुछ भी LHS में लिखा होगा, so x belongs to A intersection B whole not means कॉम्प्लीमेंट. अब आपको मालूम है जो चीज़ कॉम्प्लीमेंट में होगा वो उस सेट में नहीं होगा. तो अगर कॉम्प्लीमेंट में होगा तो वो उस सेट में नहीं होगा. इट मीन्स x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B. इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो उस सेट में नहीं होगा. Then now see, open the bracket, x does not belongs to A और does not के केस में इंटरसेक्शन के प्लेस पे लिखा जाता है R. R x does not belongs to B. So x does not belongs to A or x does not belongs to B implies that once more the same thing. अगर वो A में नहीं है, अगर वो A में नहीं है तो A कॉम्प्लीमेंट में वो होगा. सो x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट. इसी चीज़ को हम एक बार कंबाइन करके लिख देंगे. x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट और R के प्लेस पे लिखेंगे यूनियन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू साइन नहीं है. यूनियन B कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 1. बिल्कुल वैसे ही आपने LHS को लेके चले, LHS को लेके और आपने स्टेप्स फॉलो किया तो आपको RHS मिल गया. और अब आप बिल्कुल वही करिए, RHS को लेके चलिए और एक एक स्टेप करते आप LHS तक पहुँचिए. सो लेट x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. ये RHS है. अब हमने बता दिया है को RHS को सॉल्व भी नहीं करना है. आप इसको ये आया, इसके प्लेस पे आप ये लिखिए, फिर इसके प्लेस पे ये, फिर इसके प्लेस पे ये और फिर इसके प्लेस पे विदाउट थिंकिंग एनीथिंग. अगर आप सोचेंगे तभी वही आएगा. सो अगर वही आना है तो हम एक एक स्टेप करके लिख दें. आपने ये लिख लिया, इसके बाद आप ये लिखिए x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट और x belongs to B complement. This implies that x does not belongs to A or x
डज नॉट बिलोंग्स टू बी। आप यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इस लाइन के बाद ये लाइन अगर आप सोचेंगे तब भी वही आएगा। डज नॉट बिलोंग्स टू साइन है तो आर के प्लेस पे आप इंटरसेक्शन लिखेंगे, आर के प्लेस पे इंटरसेक्शन। आफ्टर दैट विच व्हाट लाइन, ये आपने लाइन लिख दिया। इसके बाद आपको ये लिखना है एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल नॉट, एंड दिस इज सेकेंड वन। अगर वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो फिर वो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा। दिस वन सेकेंड वन। सो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, A intersection B whole naught is equal to A naught union B naught, and this is the proof of the second De Morgan's theorem. So in this video, the very important video, this was very important thing you have studied, the De Morgan's theorem, उसका verification और उसका proof. So I hope all the things are clear to you, especially the proof using properties. So wait for the next video. All the best. Thank you.